Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for a Saturday evening Bhagavatam class. So we are in the midst of the 10th chapter in the first canto. We have completed verse number 25. So 1.10.25, 24. Okay, 24 is completed. We will start from 25. So can anyone read? But before we start, can we have a fast recap of what we discussed last time? Does anyone remember? किसी को याद है? Because it was not in some earlier era, it was only in the earlier Saturday. People might forget if it's some era difference, but it was just 1 week earlier. So we talked about Nitya Baddha and Nitya Mukta. So Nitya Baddha is always in conditional life, busy in conditional life, and Nitya Mukta is always in transcendental services of the Lord. Okay. What else? Devotional service should be rigid. Yes, very good. And We should not have the feeling of wanting more. yes, we should not be extra desiring. Yesterday I was discussing a very important point in the Thursday Zoom class. Is wealth important or not? So how many people agree yes, wealth is required, and how many people say no, Prabhuji, we are in devotional process, we don't need wealth. And some will say we need only wealth, devotion is not required. But there are three categories basically. So which category would you say yes, we need both? Yes. How come the wealth is good for devotion? You can use wealth for doing seva. Okay. That's in charity or in donating money. Very good. What else? तीर्थ यात्रा करनी हो तो फिर तीर्थ यात्रा, very important point. आजकल तीर्थ यात्रा से very costly affair. गीता distribution. That's donation. Okay. It frees up some work which otherwise we have to do if we are not having wealth. Okay, fine. You see a person who is running from morning to evening, a common man, he takes all the pains of traveling in a local train, reaching to an office, working the whole day, and again coming home with a small salary package of let's say 30,000 or 25,000. And it's nowadays in today's cost of living, 30-40,000 is a meager package. The cost of living has increased so much. Then my question is, how and when will that person get time? Will ever get time also to do a devotion? मिलेगा उसको time? Chance है. One may say, Prabhuji, once I get money, I will apply it in devotion. This is for those who are not having money, for donating or anything. For those who are having, let's say, when does the hunger for the trishna for money, when does it come to an end? Never. Right? Unanimously, everyone agrees. Hunger for money never ends. Then what is the way in which one can apply it? Then why has God given it? If money is the very root cause of all bad things. When you have money, the first thing which creates problem is it takes you to away from God. See, let's say you got X amount of money. How much of money can you spend in eating normal food? Even a rich man cannot eat more than 4 rotis, sabji, whatever it is. I mean, he is eating momos and pizza and all that. He has got a limitation. After that, what will he do? Okay, you may spend on some lavish tours or travels or anything, fine, some donations to the temple. Then what is done? Whatever is left over will be spent, if at all spent, mostly on bad things. A person who has got enough for his bread and butter, he runs because he wants to have a nice weekend, which means a nice party with alcohol and non-veg and illicit sex and gambling and this and that. So this is a vicious circle. But then if that is bad, why did God give you this? अगर ये बुरा है तो भगवान ने क्यों दिया? भगवान बेवकूफ तो नहीं. There is some reason for it. So Shastra says it is
in the 6th chapter of Bhagavad Gita, this point is raised by Arjuna. Arjuna asked this question on our behalf, because especially it is for me, I would always consider. Because Arjuna says, what if आपका आयु खत्म हो जाती है, you die before you complete your devotional service, then what will happen? I don't know about you, but मेरा तो I think I won't be able to complete my devotion before I die. So बुरा वयस ना, पूरा जिंदगी दारू नहीं पिया, नॉनवेज नहीं खाया, व्यभिचार नहीं किया, है ना, गलत चीजें नहीं खाई, यहाँ तक ऑनियन गार्लिक तक नहीं खाया, और फिर एंड में मालूम पड़ा फेल, सीए का एग्जाम की तरह, कम अगेन अप्लाई सर रिप्लाई, मतलब जब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डिवोशनल सर्विस? यू आर नॉट गॉन टू गॉड इट. अभी नहीं गए तो कहां जाओगे? ये ना, अब यहां आ गए तो वापस 84 लाख योनि का भी चक्कर हो सकता है. अगर चलो नहीं हुआ तो भी क्या होगा? दैट्स द डिलेमा व्हाट अर्जुन हैज गॉट, एंड ही आस्क्ड कृष्णा, एंड कृष्णा टेल्स हिम डोंट वरी. जो भक्ति में फेलियर्स है ना, उनके लिए अनलिमिटेड स्वर्ग है. पहला चीज क्या मिलता है? अनलिमिटेड स्वर्ग. इसी नॉर्मल पीपल व्हेन दे गो टू स्वर्ग, they can stay only till the period of their पुण्यस. जितना पुण्य है उनके पास, जितना पुण्य किया उतना ही वो लोग स्वर्ग में रहेंगे, और उसके बाद whereas for a devotee who has not been able to complete his devotion, for him God sends him to a heaven. There are various heavens. इसमें high class, highest quality. These are resorts भी बहुत सारे वैरायटी के resorts हैं, but the highest resort is also there, ना, where you got, you know, room के अंदर ही jacuzzi है, ये है, वो है, that type of resort, he will send you that. And then what? And then he says, when you're bored, when you're fed up, when you're tired, you'll come right to this material world, but you will be born in Srimatam Suchimatam Gehe. You will be born in rich and aristocratic family. Now, here, God has done His job. God has done His job. इसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता. He has put you in a rich and aristocratic family. Rich and aristocratic means what? You don't have to think for the next meal. या महीने के एंड में मैं खाऊंगा क्या, या महीने का एंड में what will be my, क्या होगा मेरा आगे, या मैं अभी 10-20 साल में रिटायर होने वाला हूं, अभी तो घर नहीं है, कुछ ये नहीं है, सेविंग्स नहीं है, बुढ़ापा कैसा निकलेगा, नो, दोस जनरल क्वेश्चंस which come in a common man's mind. So Lord says, I will put you in a rich and aristocratic family. Now here at this point, there are two possibilities. One is, you can drive a Porsche car. Rest I need not tell you, you are smart enough. What is happening in the so you can write an essay on 200 pages, you know, words essay on driving a Porsche car. Or the second option is, since you have no other tension, आपके ऊपर कोई बंधन या टेंशन नहीं है, आप निश्चिंत होके भक्ति कर सकते हो. तो आपको पता है, हमसे कम मेरा पीढ़ी और मेरा नेक्स्ट पीढ़ी तक का पैसा है. सो एट दैट सिचुएशन, व्हाट इज द एडवांटेज यू आर हैविंग? दैट यू विल डू डिवोशन. आज 90% पीपल, व्हाई दे स्लॉप? बिकॉज इट इज देयर क्वेश्चन ऑफ ब्रेड बटर, ओके लेट्स से जैम एंड चीज ऑल्सो, बट उसके बाद व्हाट? वंस वो संग्रह हो गया, कुछ लोग हैं, no, some ministers are there who are soaked in money, but they want more. Yes, when it comes to money, they'll mange more. There is no end to it. But finally, at one point, one has to say, yes, now enough money. Now I don't want a craving for money. मुझे अब पैसे का तृष्णा नहीं, अब मुझे कृष्णा चाहिए. Now I need God. I need, because using that money, utilizing that money, one has to take his path back to God. That is the right way of applying the, whatever material resources. Money is a resource. Good health is a resource. Mind you, you got a lot of money, but what is the use? You got some health issues, some chronic disease or something. Can you do devotion? With my leg ache, sometimes I find it difficult. With my leg ache, I find that when I can't walk and chant, I have to sit in one place and chant. It's like some or the other discomfort is there.
So these are all, whatever one gets, they are all resources. Good health is a resource. Money is a resource. Everything is a resource. Utilize that. It is like, it's like, Indian army has got, every army has got, every country has got an air force, a navy, cavalry or infantry, whatever you call it. Can you use only an infantry to fight a war? Can you use only an air force to fight a war? Can you use only a navy? It is a combination of three. Similarly, all the factors given to you, God has blessed us. Always I say, सबसे बड़े भाग्यशाली कौन है? जिनको इंसान का शरीर मिला है. उससे भी भाग्यशाली कौन है? जिसको क्या? स्वस्थ शरीर मिला है. परफेक्ट. Who has got a healthy? Because इंसान बना लूला लगड़ा बन के क्या करेगा? चलो स्वस्थ शरीर मिला. उसके बाद भारत देश में जन्म लिया उसने. भारत देश में जन्म काफी सारे लोग लेते हैं. हाँ, कई सारे जड़ बुद्धि वाले लोग भी हैं. उस देश में भी आपको पहला चीज तो सनातन धर्म में जन्म दिया. आपको कहीं कुछ और जन्म इसमें जमात में डाल देते आपको, तो फिर क्या होता? यू आर मोर लकीयर दैट यू गॉट अ बर्थ इन इंडिया, दैट टू इन ए सनातन धर्म. और उससे भी बड़ी बात, यू हैव गॉट टाइम टू अटेंड सत्संग. यू गॉट टाइम टू अटेंड सत्संग. कितने लोग हैं आज भी, देखो अभी भी ऑफिस में से अभी निकलते रहेंगे, काम से निकलते रहेंगे, मजबूरी से ट्रेन का धक्का खाते रहेंगे या बस का धक्का, जो वॉट एवर इट इज. आजकल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इज ऑल्सो धक्का खाना ही है. डोंट थिंक दैट इट इज समथिंग. एसी वाला धक्का है. you are sitting in a box of AC and then going from bumper to bumper. So, and what I'm saying is, at least God has given you satsang and God has given you the time to attend satsang. ये सब चीज अगर नहीं हो, what is the use? If God has not given you, not only just giving satsang, ठीक है सत्संग है, कितने लोगों को हम लोग फोन करके बोलते सत्संग है आइए, कितने लोग आप पाते हैं? How many people are able to come? कारण कुछ भी, कुछ ना कुछ कारण बोलेंगे, नहीं प्रभु जी आप मेहमान आ गए, ये आ गए, वो अभाव है व्यक्ति जो सत्संग में नहीं आ पाते. सत्संग में जो आ रहा है, वेरी गुड. सो दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड हाउ लकी इज. एंड एवरीवन इंडिविजुअल, क्या प्रभु जी मेरा नसीब तो फूटा है. एवरीवन क्राइज. Everyone has a reason to cry, but everyone doesn't have a reason to rejoice. Yes, I am so lucky that I got time and attend satsang and take some spiritual knowledge. So please understand that devotion has to be rigid and focused. Okay, please read 1.10.25 Srimad Bhagavatam. Whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord in his transcendental form manifests his supreme power. The truth positive shows special mercy to the faithful, performs wonderful activities and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. See, first and foremost, here the situation is Krishna has finished the war. He has saved Uttara's Garbha, that is Parikshit Maharaj has been saved. Bhishma Pitamaha has already been liberated. The Vishnu Sahasranam has been sung. The Bhishma Samvad is also over. And now he is leaving for Dwarka. And what we are seeing is the emotional attachment of the devotees to God. So जब भगवान निकल रहे हैं तो भगवान ने क्या क्या किया है? तो यहाँ पे सुध गोस्वामी बोल रहे हैं कि whenever there were kings and administrators living like animals. Now what is this? Kings and administrators living like animals? Sorry. हाँ, अपना पहचान का. Okay, fine. It happens. I also forget times. Don't worry. But my point is,
what makes them animals? What makes them animals? Their choices, wrong choices. The acts, what they did. Desires. Desires, decisions, intentions, fine. Irreligion, fine. Irreligion, it's only religion? Dharma. They were on adharma. When Krishna shows his Vishwarupa, when he goes as Shanti Deva, that time Krishna asked, before that he asked, यार और तू 5 गांव देने को तैयार नहीं, डोंट यू थिंक दिस इज अधर्म? या ये धर्म है? That time what Duryodhan says? He says, I know this is adharma, but I can't follow dharma. I can't follow dharma. Manufacturing defect. This is animalistic. मतलब धर्म कहता क्या? What is dharma? Dharma doesn't mean only religion. Dharma means rules and sets to be followed. And when you cannot follow those rules, when you live a life, there is a set of rules given to you. One has to follow that rule of life. One, if he doesn't follow those rules of life, then living that life is an animalistic life. जी तो सब रहे हैं, छाती सबकी चल रही है, मतलब सब सांस ले रहे हैं, but क्या फायदा? It's of no use. If one doesn't follow his dharma, the righteous way of living life. So those people, they turn into animalistic people. And जब ये लोग बढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का ग्लानि, when there is a destruction in religion or religious principles, भगवान को आना पड़ता है. बट भगवान आते उनके लिए नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. या तो उनको रस भाव रहता है, जब हाई लेवल का डिवोटी जब राक्षस बन के आते हैं, जैसे जय विजय बन के आए थे, रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे, फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पहले बने थे, फिर रावण और कुंभकर्ण, और देन लास्ट में शिशुपाल और दंतवक्र. ये 3 जन्मों का श्राप मिला था. तो वो लेवल में आके कृष्ण वॉज एंजॉइंग फाइट विद देम. रामा वॉज बिजी फाइटिंग विद रावण. कहा उल्लेख है रामचंद्र जी फाइटिंग विद दोस साधारण असुरस? आए थे एक साथ 14,000 असुर आए थे. हाँ, सीता मैया को क्या बोला उसने लक्ष्मण को? लक्ष्मण सीता मैया को लेके जाए, यहां रहेगी तो वो कृपा कर सकेगी. हाँ, सीता मैया तो शी इज सो मर्सीफुल. लक्ष्मी देवी इज सो मर्सीफुल. यू सी इन चित्रकूट when Jayant came as a crow to hit the Vakshasthal of Sita, रामचंद्र जी did not wait. Hey लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ. मैंने डायलॉग देखा, कभी सुना? Immediately took a grass. For him everything is a weapon. Just one zing, and deliberately the weapon was in slow motion. कब वो भाग सके? He did not kill him, but he left it. For sure it is going to kill him. तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दी, आके पैर में गिरे जयंत. ये सब जगह गया, सब लोगों ने भगा दिया. भाई तू जा, नहीं तो तू मरेगा, मैंने हम भी मरेंगे, भाग लो. तो सबको भगा दिया. फाइनली कम गेम एंड फेल एट द फीट ऑफ सीता मैया. एंड कैसा क्रैश लैंडिंग, उल्टा. बर्ड व्हेनेवर इट फॉल्स डाउन ना इन हरी, इट विल फॉल उल्टा ओनली. तो उल्टा गिरा. अरे कितना नादान है, देखो उल्टा गिरा है, कुछ ही मालूम भी नहीं है उसको. बच्चा है, माफ कर दो आप उसको. मैंने कहा माफ करो, तुमको तुम्हारे वक्षस्थल पे उसने रक्त निकाला है उसने. कोई बात, बच्चा दूध पीते हो कभी कभी माँ का स्तन काट लेता है, जब दांत आ जाता है तब काट लेते हैं, तो माँ थोड़ी बोलती है जब हाँ मार देगी उसको. ठीक है, थोड़ा सह लेती है और छोड़ देती है. तो दिस इज सीता मैया करुणा. तो वापस बोलेगी राक्षसों को छोड़ दो, बोलेगा तो लक्ष्मण लेके जाते, माता जी को लेके जाकर वहां गुफा में रखते. तो उसने छुपा दिया और रामचंद्र जी ने एक साथ 14,000 खत्म. बट इंडिविजुअली ही डिडंट गो फॉर स्मॉल फिशेस.
His main job is forcing. But in the whole process, what is his actual intention? To have relation and to have corresponding relation with his devotees. शूर्पणखा के साथ शूर्पणखा जैसा व्यवहार और शबरी के साथ शबरी जैसा व्यवहार. That one has to understand. So for that reason, Lord had come and performed wonderful activities and manifested various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. हर युग में अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी लीलाएं की. कृष्ण के अवतार में उनकी लीलाएं अलग थी, रामचंद्र जी के अवतार में उनकी लीलाएं अलग थी. All are enjoyable. All are giving lot of message to all of us. Next verse. Is the dynasty of King Yadu, and how virtuous is the land of Mathura, where the supreme leader of all living beings, the husband of the goddess of fortune, has taken his birth and wandered in his childhood. Now people always say मथुरा कितना अच्छा भाग्यशाली जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया. So great. एक बार हरिराम व्यासदेव बोल के एक बाबा जी रहते वृंदावन में. उनका काम क्या था मालूम? व्हाट वाज हिज ओनली जॉब? कोई भी वृंदावन में आ जाए ना, जाते वक्त उसको जाने नहीं देते थे, उसको पकड़ के रखते थे. तुम इधर देखो. तो बहाना कुछ भी ढूंढते थे, बट उसको वृंदावन से बाहर जाने नहीं देते. तो एक बार एक साधु महात्मा आ गए, तो उनके घर पे आ गए, तो रुक गए थे. तो जब साधु महाराज आए तो साथ में अपना शालिग्राम लेके आए, छोटा सा शालिग्राम. बोला दे दिया भाई, इसका भी आपका भगवान का जो मंदिर है उसमें रख के आप इसका भी पूजा करो. उसको शालिग्राम देके बैठे. अब हफ्ता 10 दिन हो गया, तो पूछे कितना दिन का प्रोग्राम है आपका? बोला और हूँ 1 हफ्ता हूँ, बाद में निकल जाऊँ. ठीक, लिख के नोट करके रख लिया, ये 1 हफ्ते बाद जाने वाला. जैसे जिस दिन जाने का बात निकाला उसने क्या बोला उसको? कि कहाँ जाने की बात कर रहे हो अभी? कल तो साधु भोजन है, हमारे घर पे साधुओं को बुलाया है, आपको भी सेवा करना पड़ेगा. ठीक. तो एक दिन रोक लिया उसको, साधु भोजन की सेवा. नेक्स्ट डे, कल तो ये है फेस्टिवल है हमारे यहाँ पे, कृष्ण बलराम की राधा रानी और कृष्ण की ब्याह का महोत्सव रखा है. महोत्सव नहीं है तो भी महोत्सव बना लेते और उसको पकड़ के रखते. बहाना 10-20 करके. एक दिन बोले अरे आप निकल रहे हो, ठीक है, आपका शालिग्राम मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया? शालिग्राम तक नहीं देने के लिए, मतलब कम से कम शालिग्राम के लिए रुके रहेंगे. तो जब तक उसके प्राण ना छूटे ना, आदमी को छोड़े नहीं. और अगर ज्यादा बोले ना, नहीं मेरे प्राण छूट जाएंगे, अच्छा है ना, धाम से अच्छा कोई जगह है क्या प्राण छोड़ने के लिए? यही छोड़ दो बोलेगा. तो ही इज टू बी वेरी वेरी पक्का. It's a true story. Finally, that person said, "No, I have to go." Okay, fine, no problem. लो डबा लाओ, मैं आपको शालिग्राम देता हूँ. झगड़ा किया उन्होंने, तो झगड़ा करके लिया और शालिग्राम नहीं दिया. क्या दिया? चिड़िया रहती है ना, छोटी सी चिड़िया, जाके डब्बे में डाल के पैक करके दे. लेकिन एक काम करो, जाते वक्त ना यमुना में नहा के जाना. क्या बोले? यमुना में नहा के जाना और आपके भगवान को भी नहलाना, फिर जाना. गया, जैसा बोला, अभी इतना बड़ा संत ने बुलाया तो उस हिसाब से गए यमुना किनारे नहाने के लिए. बोला पहले शालिग्राम को नहलाता हूँ. डब्बा खोला, फुर करके उसको धक्का लगा. मेरे भगवान उड़ गए, मेरे भगवान उड़ गए. अब क्या करूं? वैसे वापस आया बाबा जी के पास. क्यों आया वापस? नहीं, मेरे भगवान उड़ गए. जैसे मैंने डिबिया खोली, भगवान उड़ गए. अब क्या? हाँ देखता हूँ. घूम के देखा, हाँ देखो उड़ के इधर ही है. उनके ऑल्टर में रखा हुआ था भगवान, उनके मंदिर में रखा हुआ था. देखो उड़ के कहाँ है? यहाँ पे आए. भगवान नहीं जाना चाहते वृंदावन छोड़ के, आप क्यों जाना चाहते हो? सो प्लीज अंडरस्टैंड द महिमा ऑफ अ धाम. चाहे वो वृंदावन हो, चित्रकूट हो, अयोध्या हो, या कोई भी धाम हो, द्वारका हो, एक जगह पे भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की है, इसका कोई लिमिट.
So please understand, that is why specifically the name of Mathura comes. We say, we enter, we get down at Mathura, we go to Vrindavan. मथुरा और वृंदावन में अंतर नहीं है. कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था और वहां से इट्स हार्डली 15 किलोमीटर्स. तो आज के तारीख में बॉम्बे इज बिग सिटी, यू कांट मेक अ डिफरेंस बिटवीन वन एंड ऑफ द सिटी टू द अदर एंड ऑफ द सिटी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून? विष्णु. सो विष्णु के अवतार कृष्ण जी भगवान जो है उन्होंने वहां पे जन्म लिया एंड वॉन्डर्ड इन हिज चाइल्डहुड टाइम्स. बचपन में यहां विचरण किए. कितनी बड़ी बात. हम लोग जाके वहां पे जाके वी लाइक टू एंजॉय रादर देन एक्चुअली ट्राइंग टू गेट द मर्सी ऑफ गॉड. दिस सेड, भक्ति जो है ना बहुत सारा क्या कहते हैं वेद पाठ करने से, ना अनुष्ठान करने से, ना तपस्या करने से, ना सत्संग में जाने से भगवान मिलते हैं. जब भगवान की कृपा हो आपके ऊपर, when he is merciful on you, then only you can get God. Okay, next verse. Undoubtedly, it is wonderful that Dwarka has defeated the glories of the heavenly planets and has enhanced the celebrity of the earth. Why? How come Dwarka can beat the glory of heaven? Heaven is such a nice opulent place. Krishna is present. Krishna is present here. Now, when Ramchandra ji is about to go to Van, तो Lakshman, ठीक है, there are so many hitches in the whole Ramayana. Why he doesn't appeal to Lord Ramchandra ji in the first? He waits for Ramchandra's permission for Sita first. जब राम और सीता दोनों साथ में निकलने के लिए तैयारी करते हैं तब जाके लक्ष्मण बोलता है मैं भी आपके साथ वन में आऊंगा. हाँ, तो रामचंद्र जी बोलते नहीं, तो बोलते नहीं आपको और कुछ नहीं करूंगा, मैं सब सेवा करूंगा. तो ही नोस, एटलीस्ट रामचंद्र जी ने ना बोल दिया ना तो सीता मैया बोली ठीक है चल, जी इज मर्सीफुल. तो ही गोज टू हिज मदर सुमित्रा एंड ही सेज, माता मैं रामचंद्र जी के वन में जा रहा हूं. कहां वन में जा रहा है? कौन सा वन? जहां रामचंद्र जी वही तो अयोध्या है. वेयर एवर रामचंद्र जी गोज दैट इज अयोध्या. Ayodhya as a city, as a town, minus Ramchandra ji is a haunted city. Why all the people of Ayodhya went with Sumitra when he took Ram and Lakshman and Sita to going to the forest? सारे अयोध्या वासी भी साथ में आ गए. इस पागल के साथ कौन रहेगा, कैकेयी के साथ कौन रहेगा, चलते हम लोग भी जाते हैं, रामचंद्र जी के साथ जाते हैं. सब लोग गए, तमसा नदी तक गए. और कहते हैं आज भी इफ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस ना अयोध्या टू तमसा नदी, इट्स अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स. एंड मॉर्निंग रामचंद्र जी लेफ्ट एंड बाय इवनिंग ही रीचेस दैट प्लेस. तो आचार्य से कि बूढ़े लोग जो चल नहीं पा रहे थे, लाठी के सहारे चल रहे थे, उनको देखकर पहले रथ को फास्ट निकाला उसने, और जब देखा वो लोग लंगड़ के साथ में आ रहे हैं, कहते हैं आचार्यगण का तो एक कदम आगे है, कभी उतरे नहीं रामचंद्र जी रथ से, बट आचार्यगण कहते हैं वो तो बीच में उतर के उनके साथ चलने लगे. समुद्र को बोला धीमे चलाओ, ये लोग इतने जल्दी नहीं आ सकते. बट व्हेन ही रीचेस देयर ऑलरेडी हिज मदर हैज क्लियरली टोल्ड, जहां पे रामचंद्र जी है वही अयोध्या है. और जहां तुम्हारा जन्म क्या हुआ है धरती पे, इसके लिए जन्म हुआ है रामचंद्र जी की सेवा करना है. जहां पे वो है उनका सेवा करो, जहां पे वो है वही राज्य है. दैट इज द कैपिटल. दैट्स इट. दैट इज व्हाट शोज द क्वालिटी ऑफ अ मदर. व्हाट इज द क्वालिटी, एक्चुअल क्वालिटी ऑफ अ मदर? व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मदर? एक मां से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? Protection. प्रोटेक्शन. वेरी गुड. व्हाट एल्स? मार्गदर्शन.
Margadarshan, true Margadarshan. So what do you define as true Margadarshan? Putting him to the best school, his child or son or daughter to the best school, sending him to the costliest nursery. Nowadays, that has also become a fashion, sending to a costly nursery or a costly school or a high-end education profile. What is actually called as sanskar? The most important thing is culture. बाकी ज्ञान तो स्कूल वाले दे देते हैं, आजकल एआई दे रहे हैं. आजकल आपको स्कूल कॉलेज की भी जाने की जरूरत नहीं है, एआई सब कुछ दे रहा है. तो एक ही चीज एआई नहीं दे सकता है जो स्कूल और कॉलेज नहीं दे सकता है, वो है संस्कार. कल्चर इज द ओनली थिंग विच स्कूल एंड कॉलेज कैन नॉट गिव. एंड हाउ डज द मदर गिव कॉलेज कल्चर? कहते हैं, इट इज सेड, वन, a child should be either made a bhakta or देश भक्ता और दानी. ये तीनों नहीं किया ना, तो लेडी शुड नॉट unnecessarily deliver a child and lose her beauty. She should not lose her beauty. You know, when a lady delivers a child, definitely there is a degree of degradation in her physical beauty. But what is the use of losing it if she is not able to make the child into a devotee or a patriotic child or at least a dani? भक्त, देशभक्त या दानी, अगर तीनों नहीं कर पाए ना, तो क्यों गवाएं अपनी नूर, अपनी ब्यूटी क्यों गवाएं? It's of no use. That's why it says that all the Dwarka was like a heavenly planet. Was more better than a heavenly planet, because heaven you got opulence, but you have only demigods, देवी देवतास हैं. और यहाँ पे कौन है? स्वयं कृष्ण है. एंड कृष्ण ने क्या क्या किया वो जरा पढ़ो अभी. यस प्लीज रीड थ्रू. The inhabitants of Dwarka are always seeing the soul of all living beings, Krishna. Soul of all living beings is Krishna. Please don't interpret. Soul मतलब they are not saying individual soul. The soul, हमारे धन प्राण कौन है या प्राण धन कौन है? कृष्ण है. तो they are seeing प्राण धन रोज. कितने लकी रहेंगे वो लोग? Daily able to see God. Everyone is not getting a chance to daily see God, but they are getting a chance. So lucky. Please read. In his loving features, he glances at them and favors them with sweet smiles. Continue. क्या? Next verse. Oh friends, just think of his wives, whose hands he has accepted. How they must have undergone vows, baths, fire sacrifices, and perfect worship of the Lord of the universe to constantly relish now the nectar from his lips. By kissing, the damsels of Vrujabhumi would often faint just by expecting such favors. Just see the level of, what do you say, mercy of God. उन्होंने पहले क्या तपस्या किया रहेगा, क्या व्रत रखा रहेगा to get God as their husband, and just getting his nectar by his intimacy. It is said the Braja gopis, the ब्रज की जो गोपियां हैं, वो तो they literally fall unconscious just thinking about their. That's why when Uddhava comes, बोलते ना, हाँ हम तो गांव की छोरियां हैं, वो तो शहर की हैं, बड़ी ठाट बाट वाली हैं, भगवान को उन्होंने आकर्षित करके उनको रख लिया, हमको हमारे पास भेजा नहीं. That was the samvad which was between the gopis and Uddhava. So here Sutta Goswami is trying to say, कितने लकी हैं वो, कितने लकी हैं कि they are getting the nectar of Krishna daily, and that too with that closest intimacy as a wife, which is very difficult to get. Please read next verse. Somebody else reads from this side. Verse number 29. Fast. The children of these ladies are Pradyumna, Samba, Amba, etc. Ladies like Rukmini, Satyabhama and Jambavati,
were forcibly taken away by him from their Swayamvara ceremonies after he defeated many powerful kings headed by Shishupal. And other ladies were also forcibly taken away by him after he killed Baumasura and thousands of his assistants. All of these ladies are glorious. You know, ending of Balkand, when Ramchandra ji completes the marriage with Sita Maiya, it is said very nicely. Sita Maiya के साथ शादी किया, कैसे किया उन्होंने? What a nice pompous marriage. और स्पेशलिटी ऑफ द बारात का स्पेशलिटी क्या था? द वर्ल्ड्स फर्स्ट बारात विदाउट दूल्हा. दूल्हा पहले पहुंच गया. दूल्हा पहले पहुंच गया है अयोध्या, मिथिला नगरी पहुंच गया. अयोध्या से दशरथ महाराज पूरा एंटरप्राइज को लेके जा रहे हैं. बट लड़का, अगर कोई पूछे नो, आचार्यगण कहते हैं, उसको पूछा कि भाई दूल्हा कौन है, कहाँ है दूल्हा? दूल्हा होगा आगे आगे होगा, तो बोलते पीछे होगा. क्या मालूम, क्या बताए, दूल्हा आगे पहुंच गया पहले ससुराल में. तो दे वेंट, दे रीच्ड अयोध्या. तो आचार्यगण कहते हैं द नाइस पॉम्पस मैरिज, द नाइस वेरी सिस्टमैटिक. तो आचार्यगण कहते हैं कि द ओनली मैरिज और द ओनली पर्पस ऑफ राम एंड सीता और विष्णु एंड लक्ष्मी टू कम ऑन दिस अर्थ वाज टू गेट मैरिड नाइसली, सिस्टमैटिकली. बाकी कोई भी अवतार में शादी ढंग से हुआ ही. हाँ, कोई भी अवतार में कूर्म से, नरसिंह से, वरा अवतार से, मत्स्य अवतार से कौन शादी करे? वामन अवतार में तो बेचारे पूरे कुंवारे थे, शादी ही नहीं हुई. हाँ, तो चांस ही दो ही लीलाओं में शादी हुई, कृष्ण और राम. और कृष्ण की शादी में ना होलसेल में शादी, होलसेल में. एक तो ऑफिशियली 16,108 वाइफ्स, और उसके बाद वो अदर. तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रामचंद्र जी कमिंग इन कृष्ण लीला? एवरी मैरिज, अगर शादी का वीडियो निकाला जाए ना, हर शादी का वीडियो निकलता है, तो शादी का वीडियो निकाला जाए, उधर साले का सिर फोड़ रहा है. रुक्मिणी के साथ शादी कर रहे थे, रुक्मिणी का सिर फोड़ रहे थे. किडनैप, एकदम शादी का वीडियो चल रहा है, किडनैप करके लेके जा रहे हैं और शादी कर रहे हैं, और पीछे से बलराम आ रहा है, युद्ध हो रहा है, एंड रुक्मिणी का बाल मुंडा, आधा सर और आधा मूंछ मुंडा के छोड़ दिया. दैट इज नॉट अ नाइस वीडियो, राइट? अभी अगर आपका ये शादी का वीडियो देखोगे, यू लाइक टू प्रेफर टू हैव समथिंग नाइस गोइंग ऑन, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग नाइसली. जामवन ससुर जी के साथ 28 डेज फाइटिंग. 28 days he is fighting. क्यों? In the end, Jamban loses and says, "I will take my doctor." What is this? So it is said the entire Krishna Lila, all the marriages which he did, 16,100 wives. When Narakasura, he went, he fought, he killed Narakasura, released those ladies, and they surrendered to him. They said, "अब हमको कौन शादी करेगा? हमसे कोई शादी करेगा नहीं." But why he didn't marry those girls? Why he was waiting? Narakasura could have married, no? Naraka had accumulated them, but he didn't marry. Why? सबके साथ द्रौपदी एक ही मुहूर्त में शादी करना था. एक ही मुहूर्त में शादी करना था. तो प्रॉब्लम क्या था? He couldn't expand. Narakasura couldn't expand. Narakasura, that is the speciality of Krishna. एक ही मुहूर्त में Krishna could marry all the 16,100, whereas Narakasura could not do. Second, most important, in one muhurat, even if suppose he had done marriage, he could not stay with 16,100 in the same moment. That is the reason he was waiting for that auspicious moment when he will have the power to get married with them. So अपना क्या बोलते हैं, हाँ, तो all the leelas you see, marriage was like, किसी का सिर फूट रहा है, किसी का पैर तोड़ रहा है, it's like hang no, it's not a nice marriage video. तो only nice marriage video किसका निकला था? राम. तो अयोध्या के वासी के कई साधु कहते हैं कि रामचंद्र जी आए थे विवाह करने, और कई साधु ऐसे हैं उनका रामायण वहां पे खत्म हो जाता.
They don't read the Ramayana further. The reason is, क्यों पढ़ना है? रामचंद्र जी का विवाह हो गया, बाकी असुरों को मारने का काम तो हर लीला में कर लिया। वो सीता का हरण क्या है, और सब नकली है, पता है, जाने वाला है, हीरो यही है, पिक्चर का हीरो तो यही है, एंड में यही जीतने वाला है। सो व्हाट इज द बिग आइडिया? रामचंद्र जी का शादी के साथ ही हमारा रामायण खत्म। They will read only till that part, only Balkand. They will not read further. So that is also the bhava of the Ayodhya sadhus of Ayodhya. So that is why here Sudha Goswami is saying the wives of Krishna are so lucky. उन्होंने क्या तपस्या किया रहेगा कि उनको अपने पति के स्वरूप में पाने के लिए। Please read it. हाँ कोई तो read करो। All these women auspiciously glorified their lives despite their being without individuality and without purity. Their husband, the lotus-eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their heart by making valuable presentation. For the next verse. कोई और? While the ladies of the capital Hastinapur were greeting him and talking in this way, the Lord smiling accepted their good greetings and casting the grace of his glance over them, he departed from the city. The most important thing one should remember when he is coming to visit God or visit the deities, whether he is seeing or not is not the point. The point is whether God is seeing him or not. That should be the attitude. That's why Jagannath ji has got big eyes. दूर कोई खड़ा रहेगा ना, हाँ देख लिया तुम, भगवान देख लिया. So that is why what is important is what you see. God is not important because we can see only through material eyes. भगवान का ड्रेस आज फीका लगा, आज भगवान का श्रृंगार है ठीक है, कल अच्छा था आज थोड़ा कम. That's the material way of looking at God. But whereas God's mercy on us, just by glancing at us, He gives us a mercy. Next verse, please. Maharaj Yudhishthir, although no one's enemy, engaged 4 divisions of defense: horse, elephant, chariot, and army, to accompany Lord Krishna, the enemy of the asuras, demons. The Maharaj did this because of the enemy, and also out of the affection for the Lord. See, पहले चीज से यहाँ पे first line starts with Yudhishthira Maharaj, who is Ajata Shatru, without any enemy. ये without an enemy का उसका एक understanding is very deep. व्यक्ति का कई बार इंसान का दुश्मन हो सकता है, बट व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है इसका एक उदाहरण. कितने लोगों ने गीत गोविंद के बारे में सुना है या पढ़ा है? सुना है ना गीत गोविंद? वेरी नाइस थिंग. एंड हु वाज द राइटर ऑफ दैट? जयदेव गोस्वामी. उनकी जीवन का एक लीला बताता है. जयदेव गोस्वामी, ही वॉज द रचनाकार ऑफ. तो एक बार एक जगह पे पाठ करके जा रहे थे, आफ्टर टेकिंग द दक्षिणा वॉज गोइंग बैक टू हिज हाउस. ऑन द वे देयर वर सम डाकूस, डेडली डाकूस. तो उनका जॉब क्या था? लोगों को रोकना. फिर लोगों को बोलते थे हमको वहां तक छोड़ दो ना आगे, तो बैलगाड़ी में जा रहे हो हमको भी छोड़ दो, तो बैलगाड़ी में बैठ जाते थे, फिर आगे जाके लूट लेते. तो जयदेव गोस्वामी वॉज वेरी स्मार्ट. उन्होंने जैसे गाड़ी में बैठे जा रहे थे, देखा उन्होंने रोका, अरे भाई साहब गाड़ी रोको गाड़ी रोको. बोला, देख के उनके हाव भाव देख के समझ गया ये चोर डाकू है, लुटेरे हैं, रहने दो. आपको पैसे चाहिए ना, अभी दे, पहले दे. जैसे गाड़ी लेके थोड़ा आगे गया, वो लोग ने आपस में डिस्कस किया. बहुत स्मार्ट आदमी, इंटेलिजेंट आदमी है. आगे जाके उसने अगर राजा को बता दिया तो अभी उसने तो हमारा चेहरा भी देख लिया है, he might go and inform the king's people and they will come and attack us or kill us. So what do? We will kill him. Best is we will kill him. हम लोग उसको पकड़ते हैं, उसका हाथ पैर काट देते हैं और उसको उठा के कुएं में डाल देते हैं. And they did the same. वो लोग गए आगे, उसका हाथ पैर काटा और कुएं में डाल दिया.
और see the level of devotion of Jaydev Goswami. Written गीत गोविंद. कुएं में भी बैठे रोते हुए भगवान के गुण गा रहे, हाथ कट गया, पैर कट गया, ओके, भगवान के गुण गा रहे हैं कुएं में बैठ के भी. और बाय चांस उसी देश का राजा, नगर का जो राजा था, वो वहां ऐसे जंगल में क्या हंटिंग करने के लिए आया था. उसने सुना, अरे ना मधुर भगवान का लीला कौन गा रहा है, कौन है कुआं में, जाओ सैनिक जो उसको लेके आओ. लेके आया, उसको मरहम पट्टी कराया, बोला चलो हमारे महल चलो, हमारे महल लेके मरहम पट्टी कराया और बोला आप यहीं रुकिए महाराज. उसको पता नहीं था, he himself was a big devotee of God. The king was a big devotee of God and he himself used to sing the Gita Govind. So he told the king told him, you stay here. And when a sadhu is there, a guru is there, what does a guru tell? Hey, कुछ डोनेशन करो, hey, उसका सेवा करो, hey, तुम इसका ये करो, तुम मतलब the guru always guides to do some righteous job or righteous deeds by the king. So he was telling, but he didn't have hands and legs now. He was in a very pathetic condition. मगर उसने राजा को बोला, राजा एक काम करो, जब भी ब्राह्मण आएंगे ना, ब्राह्मण को दान दो, रोज ब्राह्मणों को दान दो. ठीक, तो रोज ब्राह्मण को बुला देते, दान देता था राजा, मतलब जितना बोला उतना दे देता था. ब्राह्मणों को कभी दुखी नहीं करता था. फाइनली जब एक दिन ये न्यूज पहुंचा उन चोरों के पास कि राजा आजकल बहुत दान दे रहा है, हम लोग भी जान जाते हैं, बनने में क्या जाता है, ब्राह्मण बनने में कितना टाइम लगता है, धोती पहनना है, छुट्टियां रखना है, बाल मुंडाना है, छुट्टियां रखना है, और कई जनों पहन लिया तो ब्राह्मण बन गया. और क्या है, ब्राह्मण एक्सटर्नली बनने में कितना टाइम लगता है, बन गए चोर. और वही चोर बने और गए वहां, जाके देखा तो राजा के बगल में जयदेव गोस्वामी बैठा है. पहचान गए, तो मरा नहीं तो इधर है, हम लोगों ने हाथ पर काट के उसको डाल दिया, तो हम लोग सोचे मर गया रहेगा, मरा नहीं, अब हमको लटकाएगा, हमको पकड़वा देगा, तो अब इसको भागते हम लोग यहां से. तो मुंह छुपा के भागने लगे. जयदेव गोस्वामी देख लिया, ओ मेरे गुरु भाई है, उनको पकड़ो, बुलाओ, कहां जा रहे हैं वो, बुला. तो सैनिकों ने जाके उनको लेके आए, बोले राजा इनकी खास खातिरदारी करना, ये मेरे गुरु भाई हैं, जितना धन मांगे उससे अधिक ही देना आप उनको, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए. किंग वॉज एक्साइटेड, आपके गुरु भाई हैं, ऊपर से आपने आज तक कभी किसी को ऐसा स्पेशल बोला नहीं था, तो आप चिंता मत करो पंडित जी, गुरु जी, मैं उनको सब कुछ दे दूंगा, सोने का पलंग, सोने का कुर्सी, हीरे चंदे के बर्तन, ये वो सब दिया उनको. इतने दिया वो लोग उठा नहीं पाए. तो राजा ने बोला, सैनिकों आओ उधर. 4 सैनिकों को बुलाया, ये सब उठा के बांध के ये लोग जहां पे है ना वहां छोड़ के आओ, उनके घर पे तो छोड़ के आओ, होम डिलीवरी. तो बेचारे सैनिक सब सामान सामग्री उठा के चलने लगे. तो पहले जमाने में तो कोई ये तो था नहीं, सामान लेके चल के जा रहे थे. तो जब जंगल में एक जगह पे बीच में रुक गए, ब्रेक. तब उन्होंने पूछा कि आपको बोल रहे थे, सैनिकों ने पूछा उन लोग चोरों से कि इसको ये तो बोल रहे थे आप गुरु भाई हैं, तो आप बताइए हमारे गुरुजी का, जो राजा के गुरुजी हैं, उनका हाथ पैर कैसे कटा, उनको ही पूछा. तो उन्होंने भी, बुरा प्रवृत्ति कभी जाता नहीं ना, तो उन्होंने क्या बोला, आप साधु के वेश में ना, ब्राह्मण के वेश में, तो उन्होंने बोला क्या है, अब क्या बोले, आपके लिए तो बड़े आदरणीय हैं, आपके गुरु हैं, तो हम क्या बोले, आपको खराब लगेगा, बट सच्ची बात क्या मालूम है, हम लोग सब गुरुकुल में साथ में थे और उसने गुरुजी का धन चुराया, पैसा चुराया. तो गुरुजी ने बोला मार दो उसको, ये गुरु अवज्ञा है ना, इट्स एन इंसल्ट टू द गुरु, तो किल हिम. मगर मैंने क्या बोला, हम लोग ने इसको लेके गए जंगल में मारने के लिए, फिर हम लोगों ने सोचा क्या मारना है, इसका हाथ पैर काट के छोड़ दिया. हमने इनका हाथ पैर काटा, कल पकड़ा गया तो भी हाँ, ही विल बी क्लीन चिट. हमने उसका हाथ पैर काट के हम लोगों ने छोड़ दिया था, बट यहाँ आके बड़ा पंडित बन के बैठे. जैसे लोगों ने सुना, they were like stunned, they were just listening.
It is said when a person crosses this limit of sinfulness, ना प्रकृति है ना अपना जवाब देती है. The earth quaked, it split, and these Dakus, these thieves, they went inside the earth. जो भी वो सब राजा के जो सिपाही थे वो कंफ्यूज हो गए, तुरंत जाके राजा को रिपोर्ट कर दिया. राजा भाग के आया जयदेव गोस्वामी के पास. ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं यार, आप जरा इस बात को क्लियर करो. तो जयदेव गोस्वामी पहले चीज देखो, जो जिस गीत गोविंद को तुम गा रहे हो ना रोज, वो मैंने ही लिखा है. मैं ही हूं वो जयदेव गोविंद जिसने जयदेव गोस्वामी जिसने लिखा था. गिर गया नीचे, चरण तो थे नहीं, कटा हुआ था, गिर गया नीचे. बोला मुझे पता नहीं था आप ही जयदेव गोस्वामी हो. और दूसरी बात, वो लोग चोर थे, उन्होंने मेरा हाथ काटा था, और कोई बात नहीं, मुझे उनके साथ कोई शत्रुता नहीं है. मैंने सोचा उनको धन मिलेगा तो शायद वो लोग अपना ये काम काज छोड़ के थोड़ा भक्ति करेंगे. The minute Jaydev Goswami said this, immediately his hands and legs sprang out. वापस आ गए उनके हाथ और पैर बाहर आ गए वापस. So back to normal. Looking at this chamatkar, he fell at the feet. He said, "Okay, falling at my feet." But it is said, Acharya say, one, if you are, see, that is why this word has got a lot of relevance. Ajata Shatru. Yudhishthira Maharaj did not see anyone as an enemy, but Duryodhan and a soul called team were only and only sworn enemies for them. उनका मतलब बोलते हैं ना, खून करना चाहते थे या खून पीना चाहते थे, इतने मतलब कट्टर दुश्मन थे उनके, इतने कट्टर दुश्मन थे. But when even he didn't see, but they were trying to do bad to him. Even if he did not retaliate, it is said, nature, by nature or by the cycle and by God's kripa, all the enemies were finished. Duryodhan and his team were 100 brothers. We are leaving aside Karna, Kripacharya, Dronacharya, all the other members of मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ they were 100 brothers. एक भी नहीं बचा. All the 100 died. So, and when Arjuna was talking about in the starting of the war, no, we should not kill. What did Krishna tell? You do your duty. You just do your duty. Rest, things will happen as per my will and pleasure. इस दुनिया में अगर कुछ हो रहा है, it is everything is happening by the will of God. Nothing is happening by our will. But our job is to have proclivity to do our dharma. हमको हमारा धर्म जो है, हमारा जो कार्य दिया है, जो हमको निर्देश दिया गया, वो करना हमारा कार्य है. रेस्ट इज द जॉब ऑफ गॉड. भगवान देखिए, आप आपका पार्ट करो, भगवान अपना पार्ट अपने आप कर लेंगे. हिज पार्ट ऑफ जॉब, हिज सेट ऑफ जॉब, ही विल डू ऑफ हिज ओन. योर जॉब इज टू शो योर एक्चुअल प्रोक्लिविटी और व्हाट यू आर इंटेंटिंग टू डू, दैट इज मोर. So that is why he is saying that Yudhishthira Maharaj is sending 4 sections of army. What are those 4 sections? Horse, charioteers, then elephants and foot soldiers. They are called the 4 set of, the 4 divisions of army. उस जमाने में 4 डिवीजन हुआ करता था. घुड़सवार होता था, हाथी के ऊपर होता था, then रथ के ऊपर होता था, और लास्ट में जो पैदल सैनिक थे वो भी थे. तो सब भेजा. एंड यहां पे क्या कहा? कृष्णा नीड्स प्रोटेक्शन. इट इज कृष्णा हु मेड युधिष्ठिर विन द वॉर. महाभारत का युद्ध कृष्ण ने जितवाया, ये लोग ने नहीं जीता, मगर स्नेह से, प्रेम से. वॉट आई कैन डू फॉर गॉड. जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, क्या भगवान को आपका दाल चावल की पड़ी, क्या आपकी रोटी सब्जी है, वो भी हफ्ते में 4 दिन रिपीट होती है ना. भगवान भी बोले अरे वापस लौकी की सब्जी आज वापस लौकी की सब्जी, आज वापस वही पनीर की सब्जी, वो भी फिक्स्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एवरीथिंग. इट्स नॉट. इट इज व्हाट यू एक्सप्रेस योर अफेक्शन टुवर्ड्स हिम रादर देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड. ही इज द वेरी सोर्स ऑफ एवरीथिंग. उस सब्जी का स्रोत भी वो है, उस
दाल चावल का स्रोत भी वो है. He is the source of everything. He is not waiting for your dal chawal and roti or your whatever food you are offering, but he only sees a mood. He only sees your love and affection. Same way Yudhishthira Maharaj was also showing his love and affection towards Krishna. Okay, let's like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions?